हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, उसका चैप्टर नंबर 5 द कंपनीज एक्ट 2013 कंटिन्यू कराने जा रहा हूं, जिसमें आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज इन फैक्ट its charter and defines its constitution and the scope of the powers of the company with which it has been established under the act. It is very foundation on which the whole company is built. Objective of registering a MOA, कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कराने का। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच इज फॉर्म, and so it identifies the possible scope of its operations. It enables shareholders, creditors, all those who deal with the company to know what its powers and what activities it can engage in. The shareholder must know the purposes for which his money can be used by the company. तो आगे है गाइस इसका कि एज पर सेक्शन 4 of memorandum of association of a company shall be drawn up in such a form as is given in table A, B, C, D, E in the schedule 1 of the Companies Act 2013। टेबल ए किन के लिए है? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी किन के लिए? लिमिटेड बाय गारंटी एंड विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है जी। उसका टेबल सी किन के लिए? विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट विद गारंटी एंड, ठीक है, विद शेयर कैपिटल। टेबल सी किन के लिए है? फॉर ए कंपनी लिमिटेड विद गारंटी एंड विद शेयर कैपिटल। एंड टेबल डी है फॉर एन अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। और टेबल ई फॉर द अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल। A company cannot depart from provisions contained in the memorandum of association. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the powers of memorandum of association. And if it does so, it would be ultra virus the company and void। ठीक है जी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे गाइस की कंटेंट क्या होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। एक होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा लाइबिलिटी क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। और इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, द नेम ऑफ द पर्सन हु इज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में अगर हम बात करें कि बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ पावर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या पावर्स हैं, उसका क्या किया जाएगा यदि उसके खिलाफ कुछ जाके किया तो। एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी। इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस बाय द रीजंस ऑफ स्टॉपल, acquaintances, lapse of time, delay or ratification. However, main purpose is to protect the shareholders and creditors। इसलिए उसको अल्ट्रा वायरस को ठीक नहीं किया जा सकता, जो गलत है उसमें उसको सही नहीं किया जा सकता मेमोरेंडम एसोसिएशन में। ओके जी। उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फॉर्म टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर। The document containing the article of association of a company is a business document, hence it has been constituted strictly understanding in the same words in the same sense. The article of association, in fact, the bylaws of the company, according to which the directors and the other officers are required to perform their functions as regard the management of the company, its account and audit. It is important therefore that the auditor should study them, and while doing so he should note the provisions therein in respect of the relevant matters। उसके बाद क्या है गाइस? सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 seeks to provide the contents and models of article of association। This section lays the following law: it shall contain regulation for government, it shall contain such matters as are prescribed under the
rules. It contains provisions for the entrenchment to the effect that the specified provisions. The manner of inclusion of the entrenchment shall only be made either for formation of a company, notice to the registrar of the entrenchment, मतलब जो भी amendments हुई हैं provisions, और forms of articles क्या हैं, table F, G, H, I, J of schedule 1 as may be applicable to such company. और मॉडल आर्टिकल्स क्या, कंपनी कैन अडॉप्ट ऑल द एनी ऑफ द regulations contained in the model articles applicable to such company. Company registered under the commencement of this act required to prepare article of association. ठीक है गाइज, चलिए अब हम आज डिस्कस करते हैं, छोटा सा और बड़ा बेसिक डिफरेंस है बट इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्या डिफरेंस है. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे. इट डिफाइंस एंड डिलिमिट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का में क्या डिफरेंस का पॉइंट है गाइस, इट लेज डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट. और रिलेशनशिप की बात करेंगे तो क्या है, रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड. एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. और अल्ट्रेशन में क्या है, ओनली अंडर सर्कमस्टांसेस, सर्टन सर्कमस्टांसेस एंड इन मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट ही हो सकता है. तो यहाँ पे परमिशन चाहिए रीजनल डायरेक्टर की एंड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर्स. अल्ट्रा वायरस में क्या होगा, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय द यूनैनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स. or it can be ratified. Article of association can be ratified by the special resolution of the shareholders provided that they are not beyond the provisions of the memorandum. Right guys, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है. डॉक्ट्राइन का मतलब होता है प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 Section 399 confers the right to inspect the memorandum of association and article of association to all. So it is a duty of every person dealing with the company to inspect its document and make sure that his contract is in conformity with their provisions. But whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the content of the document. This kind of presumed implied notice is called constructive notice. Doctrine of indoor management is the exception of the doctrine of the constructive notice. The doctrine of constructive notice does in no sense that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. For instance, if an act is authorized by article of association or memorandum of association, an outsider is entitled to assure that all the detailed formalities for doing that act has been observed. ठीक है जी. और एक्सेप्शंस क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, ठीक है, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी और फॉर्जरी. ठीक है जी, ये सारे एक्सेप्शंस है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के. ठीक है गाइज, तो इसी के साथ ये टॉपिक और ये वीडियो मैं कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए. ओके जी, विशिंग यू गुड लक.